السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر ایک بیوی کیسے زندگی گزارے اپنے شوہر کے ساتھ کہ جس کے بعد نہ اس کے گھر میں جھگڑا ہو، نہ فساد ہو، نہ لڑائی ہو، اور نہ ہی کوئی بھی ایسا واقعہ پیش ہے جس کے سبب ان کو طلاق تک نوبت پہنچے۔ آخر بیوی کیسے زندگی گزارے اپنے شوہر کے ساتھ جس کے بعد اس کے گھر کا ماحول جنت کا ماحول ہو جائے، اس کے گھر میں کا ماحول ایسا ہو جائے کہ بالکل حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں، آخر ویسا ماحول ہو جائے، خوشی و خرم دونوں زندگی گزاریں۔ آخر وہ کون سے اصول ہیں جن کو فالو کرنے سے وہ جنت کا ماحول اس کے گھر میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ عز و جل آج ہم انہی اصولوں کو جانیں گے۔ وہ 20 اصول ہیں، اگر انسان ان کو فالو کرے گا تو اس کے گھر میں جنت کا ماحول ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں بندھ کر زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نہ کرے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت بھی نہیں ہوتی کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے اور دونوں عمر بھر گھٹن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں، اور مسلمانوں کے ہزاروں گھر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، اور میاں بیوی دونوں ہی اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ 20 اصول کون کون سے ہیں کہ جن کو فالو کرنے سے جنت کا ماحول اس کے گھر میں ہو جائے گا، اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا رول اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ فرض اور اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جلتی رہو، تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر عمل کرے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرات محترم، یہ پہلا رول ہے۔ دوسرا رول ہے، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغیر اس کے حکم کے کوئی بھی عمل نہ کرے، اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اور ہر اس کام سے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہے وہی کاموں کو وہ کرے، خواہ شوہر کا طرز عمل اور اس کا طریقہ صحیح ہو یا غلط، عورت کو پسند ہو یا ناپسند، لیکن شوہر کی مرضی کے لیے عورت وہی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہو۔ ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی کام یا کوئی بات نہ کرے۔ یہ 2 رول ہوئے۔ تیسرا رول اور تیسرا اصول ہے جس سے زندگی اور اس عورت کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ وہ تیسرا رول یہ ہے، عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا مارے، نہ کوسا وغیرہ دے، نہ اس کو لائی ہوئی کسی چیز میں کوئی عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے تانے یعنی اپنی بھابھیوں کے تانے سن کر
कोफ्त और घुटन की भट्टी में जलती रहती है। और मैके और ससुराल वालों के दोनों ख़ानदानों में भी इस तरह के इख्तलाफ की आग भड़क उठती है कि कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है और कभी मारपीट होकर मुकदमात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है और दोनों ख़ानदान लड़ झगड़ कर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, चौथा उसूल और चौथा रूल ये है कि औरत को चाहिए कि शौहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र व शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई जेवर या कपड़ा या सामान पसंद आ जाए और शौहर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो उसको ला सके, तो कभी हरगिज़ शौहर से उसकी फरमाइश ना करे और अपनी पसंद की चीज़ें ना मिलने पर कभी हरगिज़ कोई शिकवा शिकायत ना करे, ना गुस्सा से मुंह फुलाए, ना ताना मारे, ना अफसोस ज़ाहिर करे, बल्कि बेहतरीन तरीका यही है कि औरत शौहर से किसी चीज़ की फरमाइश ही ना करे, क्योंकि बार बार की फरमाइशों से औरत का वज़न शौहर की निगाह में घट जाता है। हाँ, अगर शौहर खुद ही पूछे कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शौहर की माली हैसियत देखकर अपनी पसंद की चीज़ उससे मांग ले। और जब शौहर कोई चीज़ लाए तो वो पसंद आए या ना पसंद आए, मगर औरत को हमेशा यही चाहिए कि वो उस पर खुशी का इजहार करे। ऐसा करने से शौहर का दिल बढ़ जाएगा और उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। और अगर औरत ने शौहर की लाई हुई चीज़ को ठुकरा दिया और उसमें ऐब निकाला या उसको हकीर समझा, तो इससे शौहर का दिल टूट जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि शौहर के दिल में बीवी की तरफ से नफ़रत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर झगड़े लड़ाई का बाज़ार गर्म हो जाएगा और मियाँ बीवी की शादमानी और मसरत की ज़िंदगी खाक में मिल जाएगी। हज़रात मोहतरम, पाँचवा रूल और उसूल ये है कि औरत को लाजिम है कि अपने शौहर की सूरत व सीरत पर ताना ना मारे, न कभी शौहर की तहक़ीर और उसकी नाशुक्री करे, और हरगिज़ उसको कभी अगर शौहर का कलर कम है तो उसको कलर के सबब, या शौहर की हाइट कम है तो उसकी हाइट के सबब, या शौहर थोड़ा मोटा है या थोड़ा पतला है तो उसको इन तमाम चीज़ों के वजह से उसको बुरा भला ना कहे। और हरगिज़ कभी भूल कर भी इस किस्म की जली कटी बोलियां ना बोले कि हाय अल्लाह, मैं कभी इस घर में सुखी नहीं रही, कभी मुझे इस घर में कोई खुशी नहीं मिली, हाय हाय मेरी तो सारी उम्र मुसीबत ही में कटी, इस उजड़े घर में आकर मैंने क्या देखा, मैंने आखिर ये कौन सा मैंने गुनाह किया था कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। इस तरह की बातें, मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया कि मुझे इस घर में ब्याह दिया, मुझे इस घर में कभी आराम नसीब नहीं हुआ, हाय मैं किसी कैसे फक्कड़ और ऐसे इंसान के पास आ गई कि इस घर में तो हमेशा उल्लू ही बोलता रहा। इस किस्म के तानों और कोसने से शौहर की दिल शिकनी यकीनी तौर पर होगी, जो मियाँ बीवी के नाजुक ताल्लुकात की गर्दन पर छुरी फेर देने के बराबर है। जाहिर है कि शौहर इस किस्म के तानों और कोसनों को सुन कर औरत से बेजार हो जाएगा और मोहब्बत की जगह नफ़रत व अदावत का एक ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान उठ कर खड़ा होगा कि मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात की नाव जो है वो डूब जाएगी, जिस पर तमाम उम्र पछताना पड़ेगा। मगर अफसोस कि औरतों की ये आदत बल्कि फितरत बन गई है कि वो शौहरों को ताने और कोसने से कभी पीछे नहीं हटती और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद करती रहती हैं। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, आपने फरमाया कि जहन्नम में औरतों को बकसरत देखा। ये सुनकर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी क्या वजह है कि औरतें बकसरत जहन्नम में नज़र आईं? तो आपने फरमाया, औरतों में दो बुरी खसलतों की वजह से, एक तो ये कि औरतें जो होती हैं वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा लान तान करती रहती हैं, दूसरी ये कि ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती रहती हैं। चुनांच तुम उम्र भर उन औरतों के साथ अच्छे से सलूक करते रहो, लेकिन अगर कभी एक ज़रा सी कमी तुम्हारी तरफ से देख लें तो यही कहेंगी, मैंने कभी तुमसे कोई भलाई ही नहीं देखी, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए सर्व कर दी, लेकिन तुमसे मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सातवां रूल और सातवां उसूल ये है कि अगर शौहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और उस वक्त हरगिज़ कोई ऐसी बात न बोले जिससे शौहर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर हो जाए और शौहर का गुस्सा
भर कर औरत को बुरा भला कह दे और नाराज़ हो जाए तो औरत को चाहिए कि ख़ुद रूठ कर और गाल फुला कर न बैठ जाए, बल्कि औरत को लाजिम है कि फ़ौरन ही आजिज़ी और खुशामद करके शौहर से माफ़ी मांगे और हाथ जोड़ कर पाँव पकड़ कर जिस तरह वो मान ले उसे मना ले। अगर औरत का कोई कसूर ना हो बल्कि शौहर ही का कसूर हो, जब भी औरत को अपने आप को मुंह बिगाड़ कर या मुंह फुला कर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि शौहर के सामने आजिज़ी और इनकिसारी ज़ाहिर करके शौहर को खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि शौहर का हक़ बहुत बड़ा है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। अपने शौहर से माफ़ी और तलाफ़ी कराने में औरत की कोई ज़िल्लत नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि वो माफ़ी मांग कर अपने शौहर को राज़ी कर ले। हज़रात मोहतरम, 8वां रूल और 8वां उसूल ये है कि औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से उसकी आमदनी और ख़र्च का हिसाब ना लिया करे, क्योंकि शौहरों के ख़र्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से उमूमन शौहरों को चिढ़ पैदा हो जाती है और शौहरों पर गैरत सवार हो जाती है कि मेरी बीवी होकर मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी और ख़र्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम ये होता है कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी के दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाया करता है। इसी तरह औरत को चाहिए कि अपने शौहर के कहीं आने जाने पर रोक टोक ना करे, न शौहर के चाल चलन पर शुबा और बदगुमानी करे कि उससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फ़साद और ख़राबी पैदा हो जाती है और ख्वामख़्वाह शौहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। हज़रात मोहतरम, 9वां रूल और उसूल ये है कि जब तक सास और ससुर ज़िंदा हैं, औरत के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों की भी ताबेदारी और खिदमत गुजारी करती रहे और जहाँ तक मुमकिन हो सके उन दोनों को राज़ी और खुश रखे। वरना याद रखो कि शौहर उन दोनों का बेटा है। अगर उन दोनों ने अपने बेटे को डांट डपट कर चाँप चढ़ा दी तो यकीनन शौहर औरत से नाराज़ हो जाएगा और मियाँ बीवी के मोहब्बताना ताल्लुकात तहस नहस हो जाएंगे। इसी तरह अपने भाभियों, अपने देवरों और अपने जेठों, नंदों, भावजों के साथ भी खुश अखलाक़ी बरते और उन सभी की दिलजोई में लगी रहे और कभी हरगिज़ उनसे किसी को नाराज़ ना करे, वरना ध्यान रहे उन लोगों से बिगाड़ का नतीजा मियाँ बीवी के ताल्लुकात की ख़राबी के सिवा कुछ भी नहीं। औरत को ससुराल में सास और खुसुर यानी ससुर से अलग थलग रहने की हरगिज़ कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहने ही में भलाई है, क्योंकि सास और ससुर से बिगाड़ और झगड़े की यही जड़ है। और ये ख़ुद सोचने की बात है कि माँ बाप ने लड़के को पाला पोसा और उस उम्मीद पर उसकी शादी की कि बुढ़ापे में हमको बेटे और उसकी दुल्हन से सहारा और आराम मिलेगा, लेकिन दुल्हन ने घर में कदम रखते ही इस बात की कोशिश शुरू कर दी कि बेटा अपने माँ बाप से अलग थलग हो जाए। तो तुम खुद ही सोचो कि दुल्हन की इस हरकत से माँ बाप को किस कदर गुस्सा आएगा और कितनी झल्लाहट पैदा हो जाएगी। इसलिए घर में तरह तरह की बदगुमानियाँ और किस्म किस्म के फितने व फसाद शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दिलों में फूट पैदा हो जाती है और झगड़े तकरार की नौबत आ जाती है और फिर यही पूरे घर वालों की ज़िंदगी तल्ख और ताल्लुकात दरहम बरहम हो जाते हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि सास और ससुर की ज़िंदगी भर हरगिज़ कभी औरत को उससे अलग रहने की ख्याल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सास और ससुर खुद ही अपनी खुशी से बेटे को अपने से अलग कर दें तो फिर अलग रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलग रहने की सूरत में भी उल्फत व मोहब्बत और मेल जोल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हर मुश्किल में पूरे कुंबे को एक दूसरे की इमदाद का सहारा मिलता रहे और इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ पूरे कुंबे की ज़िंदगी जन्नत की नमूना बनी रहे। हज़रात मोहतरम, 10वां रूल और 10वां उसूल ये है कि औरत को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ हो या कोई बात नागवार गुज़रे तो औरत को लाजिम है कि हरगिज़ अपने मैके में चुगली ना करे, या तो फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए या घर जाकर कभी भी चुगली ना करे, क्योंकि ससुराल की छोटी छोटी सी बातों को शिकायत मैके में थोड़ी देर पर फ़ोन लगा के बताना, ये हुआ आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये किया, तो इस तरह चुगली हरगिज़ ना करे या मैके में आकर माँ बाप से कभी ना बताए। ये बहुत ही ख़राब और बुरी बात है। ससुराल वालों को औरत की इस हरकत से बेहद तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि दोनों घरों में
बिगाड़ और लड़ाई झगड़े तक शुरू हो जाते हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि औरत शौहर की नज़रों में भी काबिल नफ़रत हो जाती है और फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों से जहन्नम का नमूना बन जाती है। हज़रात मोहतरम, मेरी इस वीडियो का मकसद फ़कत ये है कि मियाँ बीवी दोनों ही एक मिलजुल कर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बीवी अपने शौहर को अपना बादशाह समझे और उस बादशाह की मलिका बनकर रहे। अपने शौहर को अपना ग़ुलाम बनाएगी तो ग़ुलाम की मलिका नहीं, ग़ुलाम की बांदियाँ होती हैं। इसीलिए अगर अपने शौहर को बादशाह बनाओगी तो ख़ुद उसकी मलिका बन के रहोगी। हज़रात मोहतरम, ये चंद उसूल थे जिनको आपने सुने। दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़ीद चंद उसूल हम समझेंगे जिसके सबब बीवी अपने शौहर के साथ वैसी ज़िंदगी गुजार कर अपने घर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारी इसी चैनल पर बीवी के हुकूक क्या क्या हैं शौहर पर, और शौहर के हुकूक क्या क्या हैं बीवी पर, ऐसी कई सारी वीडियोस इस पर मिल जाएंगी। माँ बाप के हुकूक क्या है बच्चों पर, बच्चों के हुकूक क्या है माँ बाप पर, इस तरह के हर टॉपिक पर वीडियोस हमारे मोहम्मदी चैनल पर मिल जाएगी। आप जाएं हमारे इसी चैनल पर और उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि हर एक दूसरे के हुकूक जानकर और उस पर अमल करके अपने घर को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाकर जन्नती होने के लिए कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।